India's modern economy moves quickly. Today's workforce relies on millions of gig riders, independent contractors delivering goods via app-based platforms, as well as stuntmen executing precision falls and contract workers keeping factory floors running around the clock. For decades, millions of these workers operated outside the legal system. They fell through the gaps of a fragmented industrial-era framework designed for factory jobs that don't match how people actually work today. This created a dangerous imbalance. If you were injured on the job or worked overtime, your access to a minimum wage or healthcare was dictated entirely by your job title. A freelancer could be legally excluded from the same safety nets guaranteed to a permanent employee. To address this, India consolidated a maze of 29 overlapping, outdated labor laws into 4 streamlined labor codes. Instead of protecting specific job categories, these codes create a universal baseline of protection for every worker. The first intervention targets the paycheck. Under the new wage code, minimum wage protections apply to all categories of workers. Additionally, anyone working beyond standard hours is legally entitled to overtime at exactly twice their normal rate of pay. This chart shows total monthly remuneration, where the allowance section hits a strict 50% ceiling. Previously, employers could dilute a worker's base pay by categorizing the majority of their salary as allowances, keeping their actual basic pay low. Because the new law caps allowances at 50%, any excess is added back to the basic pay. This larger base directly increases long-term Social Security benefits, like the Provident Fund, a mandatory retirement savings scheme, and gratuity, a lump sum payment for years of service. The codes also enforce strict parity for fixed-term employees. A fixed-term employee is a worker hired for a specific predetermined time period. They are now legally entitled to the same benefits, working hours, and allowances as permanent staff. Their access to gratuity now activates after just 1 year of service. Furthermore, if the worker passes away and leaves benefits to a minor, the law mandates those funds be locked in term deposits with nationalized banks to secure the child's future. This framework guarantees long-term financial security as a standard across all labor models. The second pillar expands recognition to those previously invisible to the state. Gig workers, platform delivery drivers, and audio-visual workers like stuntmen are now explicitly recognized under the legal definition of a worker. Maternity benefits have been updated to reflect real-world needs. The law mandates shared crush facilities, flexible nursing breaks, and accepts medical certificates from ASHA workers, local community health activists, rather than strictly requiring a registered doctor. For women choosing to work night shifts, employers are legally bound to provide secure, monitored facilities and dedicated transport arrangements to and from the workplace. For the first time, transgender workers are specifically recognized. Establishments are legally mandated to build separate welfare facilities, including restrooms and bathing areas, to ensure privacy and equal access. Physical safety mandates have been tightened. Principal employers are now held directly responsible for the welfare of contract workers, and they must provide free annual health checkups for anyone in hazardous roles. The law now adapts to the human reality of a worker's identity and physical risk profile, moving away from an inflexible system. To reduce bureaucracy, the new codes rely on centralized digital portals. When a worker registers on a platform like the eShram portal, a national database for unorganized workers, their benefits travel with them across state lines. On the ground, traditional inspectors are being replaced by inspector-cum-facilitators. They conduct randomized, technology-based inspections to remove arbitrary harassment while guiding employers on meeting safety standards. Dispute resolution has been restructured. Sluggish single-judge labor courts are being replaced by 2-member industrial tribunals to process grievances faster. By upgrading the administrative infrastructure, the legal system can deliver faster, time-bound justice. The 4 codes replace complex employment contracts and outdated industry definitions with a unified system that recognizes the dignity of every worker. This creates a shared legal protection for the people driving India's economy forward. By digitizing welfare access,
capping wage dilution and speeding up the tribunals. The codes provide a direct transfer of leverage to the workforce. The new labor codes establish fair pay, inclusive safety, and transparent justice as absolute, universal rights. India is currently executing a massive overhaul of its labor framework, consolidating 13 archaic, fragmented laws into 4 streamlined labor codes. But this transition has sparked a wave of viral misinformation. Rumors are circulating that the new laws abolish job security, ban strikes entirely, and ignore the modern gig economy. To separate the myths from reality, we have to look directly at the actual statutory text of the codes. We are going to examine exactly how these provisions impact the money you take home, your physical safety on the job, and your long-term financial security. In a fast-moving economy, understanding the exact legal parameters of your employment is the only reliable way to protect your livelihood. The Industrial Relations Code generated the loudest anxiety, the claim that employers can fire workers at will and all strikes are illegal. The right to strike remains entirely intact. The text simply mandates a 14-day advance notice before a strike begins, creating a required window for formal conciliation. Layoffs also remain heavily regulated. Companies must provide a 1-month notice and retrenchment compensation for every completed year of service. If a business employs 300 or more people, they have to secure prior government approval before a single layoff can happen. The laws establish a structured timeline. This prevents sudden disruptions and creates predictability for both the workforce and the employer. Moving to the paycheck itself, the Code on Wages has triggered fears about shrinking salaries. First, the law establishes a universal minimum wage floor across all sectors, erasing the old patchwork of varying state limits and applying it to all employees. Under the new 50% rule, allowances cannot exceed 50% of your total remuneration. Any excess is forced straight back into your basic pay calculation. This larger basic wage forces the employer to make higher mandatory contributions to your provident fund, gratuity, and statutory bonus. While your immediate monthly deposit might look slightly different, the math guarantees a massive mandatory upgrade to your long-term retirement savings. The Occupational Safety and Health, or OS, and Social Security codes update who exactly qualifies for protection, moving well past the traditional 9-to-5 factory worker. The text explicitly brings gig and platform workers into the legal fold, creating dedicated state-funded Social Security pools financed by aggregator contributions. Fixed-term employees gain major ground too. Instead of waiting 5 years, they are now legally entitled to gratuity payouts after completing just a single year. The laws also secure the right for women to work night shifts, provided the employer institutes mandatory safety, privacy, and transport protocols. The legal safety net stretches outward, catching the millions of people driving India's non-traditional economy. There is a lingering anxiety that condensing 13 laws into 4 sleek codes gives corporations a free pass on compliance. The old system of arbitrary physical inspector visits is out. The codes mandate a transparent, technology-driven model of randomized web-based inspections. While minor administrative errors can be compounded, meaning an employer pays a fine to settle a first-time offense without immediate litigation, the financial penalties for severe workplace safety breaches have multiplied. This map shows the new geographic reality for the workforce: interstate portability. By tracking data through centralized digital portals like eShram, a worker's Social Security benefits stay permanently attached to their profile, no matter which state they move to. To lock in these protections, you need to use those centralized government portals. Registering and keeping your data updated is how you actively claim these formalized rights. Condensing the paperwork has made worker rights universally visible, strictly enforced, and mathematically guaranteed. भारत में काम करने का तरीका अब बिल्कुल बदलने जा रहा है। दशकों से चले आ रहे दर्जनों श्रम कानूनों की जगह अब आ गए हैं 4 नए कोड्स।
तो चलिए समझते हैं कि इन नए लेबर कोड्स का हमारी सैलरी, हमारी नौकरी और हमारे अधिकारों पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये 4 नए कोड हैं क्या, और इतने सारे पुराने कानूनों के हटने से आखिर बदलेगा क्या? देखिए, इन बदलावों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। हर कोई सोच रहा है कि कर्मचारियों और कंपनियों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, तो इन सारे बदलावों के पीछे का मेन आइडिया क्या है? एक शब्द में कहें तो सरलीकरण। पहले जो कानूनों का एक जटिल जाल था ना, उसे हटाकर अब 4 सीधे साधे कोड बनाए गए हैं। वेतन पर, औद्योगिक संबंधों पर, सामाजिक सुरक्षा पर और काम की जगह पर सेफ्टी को लेकर। मकसद बस एक है, एक आसान और साफ सुथरा सिस्टम बनाना। अब देखिए, अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं, तो सच क्या है और मिथक क्या है, ये समझने के लिए हम सीधा सरकार के जवाबों पर ही नजर डालेंगे। भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खुद इन बदलावों से जुड़े आम सवालों पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं। तो चलिए सीधे वहीं से जानकारी लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, पैसा। मतलब हमारी मजदूरी या वेतन की परिभाषा। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि नए कोड्स के तहत हमारी सैलरी और दूसरे फायदे कैसे कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मजदूरी की एक ही यूनिफॉर्म परिभाषा होगी चारों कोड्स में। पहले हर कानून में अलग अलग मतलब था, जिससे बड़ा कंफ्यूजन होता था। अब वो खत्म। और इस नई परिभाषा में क्या शामिल है? इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल है। और इसी नई परिभाषा से जुड़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, इसे कहते हैं 50% का नियम। अब ये क्या चीज है? ये नियम साफ कहता है कि किसी भी कर्मचारी के भत्ते यानी अलाउंस उसकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। कम से कम कानूनी कैलकुलेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपकी कुल सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। फिर ये देखा जाएगा कि आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर कुल सैलरी का कम से कम 50% हो। और अगर आपके भत्ते 50% से ज्यादा हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे वापस आपकी मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा। और फिर उस बढ़ी हुई रकम पर आपका पीएफ और ग्रेचुइटी कैलकुलेट होगा। मकसद साफ है, अब कंपनियां बेसिक पे कम दिखाकर सोशल सिक्योरिटी योगदान से बच नहीं पाएंगी। और सरकार का तर्क भी बिल्कुल यही है। मंत्रालय का कहना है कि हाँ, इससे सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, लेकिन इसका असली मकसद लंबे समय में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करना है। अच्छा, सैलरी की बात तो हो गई। अब आते हैं कुछ और बड़े सवालों पर। वो सवाल जो नौकरी की सुरक्षा, हड़ताल करने के अधिकार और यूनियंस को लेकर सबके मन में है। नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड को लेकर काफी चिंताएं हैं। सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कंपनियों के लिए हायर एंड फायर करना, मतलब नौकरी पर रखना और निकालना, वाकई में आसान हो गया है? तो सरकारी स्पष्टीकरण के हिसाब से इसका जवाब है नहीं। नौकरी की सुरक्षा से जुड़े नियम जैसे कि नोटिस पीरियड और मुआवजा वो अभी भी लागू हैं। जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें भी 1 महीने का नोटिस और मुआवजा देना ही पड़ेगा। और जिन कंपनियों में 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें तो नोटिस और मुआवजे के साथ साथ सरकार की पहले से इजाजत भी लेनी होगी। अच्छा, एक और डर जो लोगों के मन में है, क्या अब ट्रेड यूनियनों की ताकत खत्म हो गई है? क्या हड़ताल करने और अपनी बात रखने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है? तो जवाब है नहीं। अधिकार खत्म नहीं किया गया है, उसे रेगुलेट किया गया है। हड़ताल करने का अधिकार अभी भी है, लेकिन अब इसके लिए 14 दिन का एक अनिवार्य नोटिस देना होगा। सरकार का कहना है कि ये 14 दिन का वक्त इसलिए है ताकि बातचीत और सुलह की कोई गुंजाइश बन सके। बल्कि इन कोड्स में तो ट्रेड यूनियनों को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी और मजबूत होगी। चलिए अब बात करते हैं ऑफिस या फैक्ट्री में सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस की। इसके लिए है OSH कोड, और इसमें सभी के लिए कुछ नए और जरूरी प्रावधान जोड़े गए हैं। और पता है, इस OSH कोड में कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव, मतलब आगे की सोच वाले नियम हैं। जैसे अब ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए अलग टॉयलेट और रेस्टरूम का होना जरूरी है। महिलाएं अगर चाहें तो अपनी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ रात की पाली में भी काम कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की सुविधाओं की जिम्मेदारी भी अब मेन एम्प्लॉयर की होगी। और जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें आने जाने का भत्ता और एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी मिलेगी। और हाँ, एक और जरूरी बात जो कई लोग पूछ रहे हैं, काम के घंटे। तो वो अभी भी दिन के 8 घंटे ही हैं। और अगर ओवरटाइम करवाया जाता है तो उसका पेमेंट डबल रेट पर ही करना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आजकल काम करने के तरीके भी तो बदल रहे हैं, है ना? फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गिग वर्क है। तो सवाल ये है कि ये नए कोड इन नए तरीकों के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये आज के हिसाब से है? एक आम शिकायत रही है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE को लेकर कि ये तो बस परमानेंट कर्मचारियों वाले फायदे न देने का एक तरीका है। क्या इन नए कोड्स में भी ऐसा ही है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये नए कोड इस पूरी कहानी को ही बदल देते हैं। अब जो फिक्स टर्म पर काम कर रहे हैं उन्हें भी परमानेंट कर्मचारियों के बराबर सारे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे, ईपीएफ, ईएसआई, सब कुछ। और एक और बहुत बड़ा बदलाव है, अब उन्हें ग्रेचुइटी के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही वो इसके हकदार हो जाएंगे। तो ठीक है, हमने काफी सारी बातें कर ली। अब जरा इन सबको समेटते हैं और देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है, मतलब इन सब का हम सब पर और पूरे सिस्टम पर क्या असर होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। कर्मचारियों के लिए क्या अच्छा है, एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज है, बेहतर सोशल सिक्योरिटी है और फिक्स टर्म वालों को 1 साल में ग्रेचुइटी है। लेकिन हाँ, अब हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है। दूसरी तरफ कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान हो गया है, एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। पर हाँ, नई वेज परिभाषा की वजह से पीएफ और ग्रेचुइटी पर उनका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। और आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, इन सारे सुधारों का मकसद क्या है? मकसद है सिंप्लीफिकेशन, कानूनों के जाल को सुलझाकर एक साफ, सीधा और आज के जमाने का एक आधुनिक ढांचा तैयार करना, जहां कोई कंफ्यूजन ना हो और सबके अधिकार सुरक्षित रहें। तो यहाँ एक बड़ा सवाल सोचना बनता है, ये जो सरलीकरण और फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भारत की इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स वर्कफोर्स के भविष्य को कैसे बदलेगा? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका असर हम सब आने वाले कई सालों तक देखेंगे। जरा सोचिए, भारत में काम करने की जो पूरी रूल बुक है ना, उसको एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट मिल गया है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। मतलब एक ऐसा अपडेट जो सिर्फ पुराने बग्स को फिक्स नहीं कर रहा है, बल्कि काम करने के जो नए तरीके हैं उन्हें पहली बार सिस्टम में रजिस्टर कर रहा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी था, है ना? दशकों से हमारे जो लेबर लॉज थे वो एक ऐसे दौर में जी रहे थे जहां काम का मतलब सिर्फ वो कारखाने में बजने वाली सायरन की आवाज और 9 से 5 की पक्की नौकरी हुआ करता था। वही घिसा पिटा सिस्टम। एग्जैक्टली। लेकिन आज इस गहन चर्चा में हम भारत सरकार द्वारा 2025 और 26 में जारी किए गए जो आधिकारिक दस्तावेज और विस्तृत FAQs है, उनके आधार पर उन 4 नए लेबर कोड्स को डिकोड करेंगे, जो कि वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, OSH कोड और IR कोड है। हाँ, और हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। मार्केट में जो तमाम अफवाहें तैर रही हैं, जैसे कि 12 घंटे की शिफ्ट अनिवार्य हो जाएगी या हड़ताल करने पर बैन लग गया है, हम इन सब की चीर फाड़ करेंगे। सही बात है। कानूनी भाषा के पीछे जो असल मैकेनिज्म है ना, उसे समझेंगे ताकि ये साफ हो सके कि जमीन पर एक आम कर्मचारी या गिग वर्कर के लिए असल में क्या बदल रहा है। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, मतलब सैलरी। हाँ, क्योंकि बाकी सारे नियम समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अब वेज या सैलरी माना कैसे जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव यहीं से तय होती है। नए कोड ऑन वेजेस ने सैलरी की पूरी वैधानिक परिभाषा ही बदल कर रख दिया है। सबसे बड़ा बदलाव जो इन दस्तावेजों में दिखता है वो है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट का खत्म होना। ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब वो जो पुरानी सरकारी लिस्ट होती थी? हाँ, बिल्कुल वही। पुराने कानूनों में सरकार के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका नाम उस लिस्ट में दर्ज है, सिर्फ तभी आपको मिनिमम वेज मांगने का अधिकार होता था। अच्छा, मतलब अगर मेरा काम नया है और लिस्ट में नहीं है तो पूरी तरह से ही सुरक्षा चक्र के बाहर थे। लेकिन अब नए कोड ने इस पूरी लिस्ट को उठा के बाहर फेंक दिया। अब एक यूनिवर्सल फ्लोर वेज का नियम आ गया था। अरे वाह! मतलब काम चाहे जो भी हो, हर सेक्टर के हर कर्मचारी पर न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू होगा। केंद्र सरकार एक बेसलाइन तय करेगी और राज्य सरकारें अपनी न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती हैं, लेकिन वो इस बेसलाइन से कम नहीं हो सकती। ये तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट हो गया। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा हलचल है वो है भत्तों को लेकर लाया गया वो 50% वाला नया नियम। ओहो, वो नियम तो कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। हाँ, जब मैं ये स्ट्रक्चर पढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा कि इसे एक पारंपरिक भारतीय थाली की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब इस थाली में बेसिक पे जो है वो दाल और रोटी की तरह है, जो भोजन का मुख्य हिस्सा होना चाहिए, और जो भत्ते हैं जैसे HRA या कन्वेंस अलाउंस, वो अचार या पापड़ की तरह है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये, है ना? अब तक कंपनियां टैक्स और PF बचाने के लिए थाली में 80% अचार और चटनी परोस देती थीं और दाल रोटी सिर्फ 20% होती थी। नया नियम सीधे कहता है कि भाई दाल रोटी को थाली में कम से कम 50% जगह तो लेनी ही होगी। हाँ, भत्ते किसी भी हाल में कुल वेतन के आधे से ज्यादा नहीं हो सकते। और आधिकारिक FAQs में इसे स्पष्ट करने के लिए एक पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। मैं समझाता हूँ कि असल में काम कैसे करेगा। हाँ, प्लीज बताइए, नंबर से थोड़ा आसानी होती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल वेतन 76,000 रुपए प्रति माह है।
अब कंपनी ने इसे बांटा है कि बेसिक पे और डीए मिलाकर 20,000 है। ठीक है। इसके अलावा कंपनी 40,000 रुपए के अन्य भत्ते दे रही है। साथ ही ग्रेच्युटी और कुछ अन्य वैधानिक भुगतान वाले कंपोनेंट्स हैं जो करीब 16,000 के हैं। तो अगर हम सिर्फ भत्तों को जोड़ें तो 40,000 और वो 16,000 मिला के 56,000 हो गए। एग्जैक्टली। तो अगर हम 76,000 की टोटल सैलरी देखें तो उसका 50% होता है 38,000। लेकिन यहाँ तो भत्ते 56,000 तक पहुंच रहे हैं। ये तो लिमिट से बहुत ऊपर है। और यहीं पर नए कोड का मैकेनिज्म काम आता है। नियम के मुताबिक जो 16,000 वैधानिक भत्ते हैं ना, उन्हें इस 50% की कैलकुलेशन से बाहर रखा जाता है। अच्छा, तो उन्हें हटा देते हैं। हाँ, तो अब बचे वो 40,000 के सामान्य भत्ते। लिमिट 38,000 की है और भत्ते 40,000 हैं। मतलब 2,000 रुपए लिमिट से ज्यादा है। पुराना सिस्टम होता तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन नया नियम कहता है कि ये जो 2,000 की अतिरिक्त राशि है ये गायब नहीं होगी, इसे वापस बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। ओहो, मतलब अब पीएफ कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी 20,000 नहीं 22,000 मानी जाएगी। बिल्कुल, यही कैच है। लेकिन अगर बेसिक सैलरी 22,000 मान ली गई तो उस पे कटने वाला पीएफ भी तो ज्यादा होगा ना। मतलब टेक होम सैलरी थोड़ा कम हो सकती है। कोई भी कर्मचारी ये सुन के तो परेशानी होगा कि उसकी इनहैंस सैलरी कम क्यों हो रही है। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझना जरूरी है। टेक होम सैलरी में जो कमी आएगी वो दरअसल कर्मचारी के ही रिटायरमेंट कॉर्पस में जा रही है। मतलब लॉन्ग टर्म फायदा है। बिल्कुल। पीएफ का बेस बढ़ने का मतलब है कि कंपनी को भी अपनी जेब से आपके पीएफ खाते में ज्यादा योगदान देना होगा। और जब सालों बाद ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो भी इसी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगी। कुल मिलाके ये नियम कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर तोड़ने मरोड़ने से रोकता है। ये बेसिक पे और सामाजिक सुरक्षा का कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर बेसिक पे के आधार पर ही भविष्य सुरक्षित होता है तो उन लाखों लोगों का क्या जिनका कोई पारंपरिक बेसिक पे स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप गिग वर्कर्स की बात कर रही हैं? हाँ, गिग वर्कर्स या जो सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नई रूल बुक कैसे काम करती है? देखिए, ये नए कोड्स का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी हिस्सा है। सबसे पहले हम फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को ही लेते हैं। भारत में दशकों से ये नियम था कि ग्रेच्युटी के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी है। हाँ, और इसी वजह से कंपनियां 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाती थी। बिल्कुल, ताकि उन्हें कभी ग्रेच्युटी देनी ही ना पड़े। ये एक तरह से कानूनी रूप से किया जाने वाला शोषण था। तो अब इस 5 साल वाली दीवार को कैसे गिराया गया है? नए सोशल सिक्योरिटी कोड ने फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए इस 5 साल की शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अरे वाह। हाँ, अगर कोई कर्मचारी 1 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर है और वो अपना 1 साल पूरा कर लेता है तो वो आनुपातिक रूप से ग्रेच्युटी का हकदार हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। और इसमें एक बहुत ही संवेदनशील कानूनी पेच भी सुलझाया गया है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और ग्रेच्युटी पाने वाला नॉमिनी कोई नाबालिग बच्चा है तो अब नियोक्ता वो पैसा किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकता। तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? उस राशि को सीधे एक राष्ट्रीयकृत बैंक में टर्म डिपॉजिट के रूप में रख दिया जाएगा जब तक कि वो बच्चा बालिग नहीं हो जाता। ये तो वाकई सुनिश्चित करता है कि पैसा सही हाथों में ही जाए। और जब हम काम के माहौल को ज्यादा समावेशी बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने पढ़ा कि इन दस्तावेजों में मैटरनिटी बेनिफिट्स और क्रैश की सुविधाओं को लेकर भी कुछ बहुत प्रैक्टिकल बदलाव हैं। हाँ, ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। पहले मैटरनिटी लीव के लिए सिर्फ डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही मान्य होता था, लेकिन दूर दराज के गांवों में महिलाएं इस फायदे से वंचित रह जाती थीं। अब ग्रामीण इलाकों की वास्तविकता को स्वीकारते हुए आशा या एएनएम वर्कर्स के सर्टिफिकेट्स को भी मान्यता दे दी गई है। सही बात है। और क्रीज की सुविधा का जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत व्यवहारिक कर दिया गया है। वो पूल करने वाला सिस्टम। हाँ, कानून कहता है कि जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी हो वहां क्रेच होना चाहिए। लेकिन छोटी कंपनियों के लिए अपना खुद का क्रेच बनाना आर्थिक रूप से संभव नहीं होता था, तो वो महिलाओं को नौकरी देने से कतराती थी। ये एक बड़ी समस्या थी। अब इसका समाधान ये है कि छोटी कंपनियां आपस में मिलकर एक पूल बना सकती हैं या किसी साझा क्रेच का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे लागत भी बढ़ जाएगी और महिलाओं के लिए काम पर वापस लौटना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब तो उन लोगों के लिए है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है ना, जो लोग फूड डिलीवरी एप्स के लिए खाना पहुंचा रहे हैं या कैब चला रहे हैं, जिनका कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर नहीं होता। एग्जैक्टली, वो तो स्वतंत्र होते हैं। तो क्या ये नया कोड उन्हें भी कोई सुरक्षा देता है? बिल्कुल देता है। भारत के श्रम इतिहास में पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी मान्यता मिली है। उनके लिए एक विशेष सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है। और ये फंड भरेगा कौन? सिर्फ सरकार? नहीं, सबसे अहम बात यही है, जो एग्रीगेटर्स हैं, यानी वो कंपनियां जिनके प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हैं, उन्हें अपने टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इस फंड में डालना होगा और इसका इस्तेमाल गिग वर्कर्स के लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, पूछे। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी टेक कंपनी चला रही हूँ और मुझे इस फंड में पैसा देना है, तो मैं डिलीवरी पार्टनर्स को सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर ही क्यों करूंगी? मैं किसी छोटी सी एलएलपी या थर्ड पार्टी वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी और वो वेंडर काम करवाएगा। इस तरह मैं सीधे तौर पर एग्रीगेटर होने से बच जाऊंगी। क्या कानून में स्लूप होल के लिए जगह है?
देखिए, दस्तावेजों की भाषा बहुत ही कसी हुई है। इस संभावित लूपहोल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अच्छा, कैसे? नया कोड स्पष्ट करता है कि नियम सिर्फ सीधे तौर पर काम करने वालों पर लागू नहीं होते। ये सब्सिडियरी कंपनियों, होल्डिंग कंपनियों और किसी भी थर्ड पार्टी अरेंजमेंट के जरिए काम करने वाले गिग वर्कर्स को भी पूरी तरह कवर करते हैं। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर वर्कर आपके प्लेटफॉर्म के लिए सेवा दे रहे हैं तो आपको फंड में योगदान देना ही होगा। और इसके समानांतर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी जैसे सिम कार्ड पोर्ट कराते हैं? कुछ वैसा ही। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अक्सर काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। पहले राज्य बदलते ही उनके फायदे रुक जाते थे। अब नेशनल डेटाबेस के जरिए मजदूर चाहे किसी भी राज्य में जाए, उसकी सामाजिक सुरक्षा उसके साथ साथ सफर करेगी। ये तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है कि पैसे और फायदों का फ्लो कैसे बदल रहा है। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डर काम के घंटों को लेकर होता है। आप उस 12 घंटे वाली शिफ्ट की अफवाह की बात कर रही है ना? एग्जैक्टली। जब ये कोड्स पास हो रहे थे तो OSH कोड को लेकर ये डर फैल गया था कि अब रोजाना 12 घंटे काम करना अनिवार्य हो जाएगा और ओवरटाइम तो खत्म ही हो गया है। इस 12 घंटे की शिफ्ट का असल सच क्या है? आधिकारिक दस्तावेज इस बात पर कोई शक नहीं छोड़ते कि 12 घंटे काम करने की अनिवार्यता एक कोरा भ्रम है। मानक वर्किंग आवर्स आज भी दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे ही हैं। तो फिर ये 12 घंटे का नैरेटिव आया कहां से? ये नैरेटिव निकला है लचीलेपन से, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के एक नए प्रावधान से। कोड में विकल्प दिया गया है कि अगर कर्मचारी और नियोक्ता चाहें तो वो हफ्ते के 48 घंटों को 6 दिन की बजाय 4 दिन में बांट सकते हैं। अच्छा, मतलब 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी। हाँ, लेकिन इसके पीछे 3 सख्त शर्तें हैं। पहला, नियोक्ता ये अपनी मर्जी से नहीं थोप सकता, कर्मचारी की स्पष्ट सहमति जरूरी है। दूसरा, हफ्ते में कुल काम 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। और तीसरी शर्त? तीसरी और सबसे अहम, अगर कोई कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे उस अतिरिक्त समय के लिए 2 गुना ओवरटाइम मिलेगा। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी रेस्टोरेंट में सेट मेन्यू की जगह बफे सिस्टम लगा दिया हो। मतलब सेट मेन्यू में तो वही खाना पड़ता है जो तय है, हफ्ते में 6 दिन 8-8 घंटे। बिल्कुल। और बफे सिस्टम में आपके पास विकल्प है। आप चाहे तो अपना शेड्यूल खुद डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर 8 घंटे से ऊपर रुकते हैं तो कंपनी को डबल कीमत चुकानी पड़ेगी। एकदम सही पकड़ा आपने। और पता है, ये बुफे सिस्टम सिर्फ काम के घंटों तक सीमित नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। वो कैसे? पुराने कानूनों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में या खतरनाक कामों में हिस्सा लेने से रोक दिया जाता था। हाँ, वो प्रोटेक्टिव नजरिया जो असल में महिलाओं को आर्थिक अवसरों से दूर कर रहा था। बिल्कुल। नया कोड इस पाबंदी को हटाता है। अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, बस शर्त यह है कि नियोक्ता को उनकी पूरी सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट की लिखित जिम्मेदारी लेनी होगी, और ये भी महिला की सहमति के बाद ही होगा। और इन दस्तावेजों में जो एक और चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रगतिशील लगी वो है पहली बार कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों का स्पष्ट रूप से दर्ज करना। हाँ, ये महज एक सांकेतिक कदम नहीं है। OSH कोड स्पष्ट रूप से नियोक्ताओं को निर्देश देता है कि वे ट्रांसजेंडर्स के लिए कार्यस्थल पर अलग वॉशरूम और सुविधाओं का इंतजाम करें। ये उन्हें कार्यस्थल पर गरिमा देने का एक बुनियादी अधिकार है जो दशकों से अनदेखा था। और गरिमा की बात करें तो जो लोग फिल्मों में स्टंटमैन हैं या डबिंग आर्टिस्ट हैं, उन्हें भी अब ऑडियो विजुअल वर्कर्स की कानूनी पहचान मिल गई है। हाँ, मतलब अब उनके पास भी स्वास्थ्य और कल्याण के वही फायदे होंगे जो किसी कारखाने के मजदूर के पास होते हैं। ये तो बहुत जरूरी था। अच्छा, ये सब अधिकार तो मिल गए, लेकिन इन्हें लागू कौन करवाएगा? क्योंकि पहले तो इंस्पेक्टर राज का बड़ा खौफ होता था। हाँ, एक इंस्पेक्टर आकर छोटी सी गलती के लिए पूरी फैक्ट्री सील कर देता था। लेकिन अब इस कोड ने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट पेश किया है। फैसिलिटेटर मतलब अब वो चालान नहीं काटेंगे? उनका पहला काम चालान काटना नहीं होगा, उनका काम होगा नियोक्ताओं को तकनीकी मदद देना। और इंस्पेक्शन अब किसी की मर्जी से नहीं बल्कि वेब आधारित रैंडम सिस्टम से होंगे। मतलब कंप्यूटर तय करेगा कि आज कहाँ इंस्पेक्शन होना है। ये तो भ्रष्टाचार कम करने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जहाँ इंसान काम करते हैं वहाँ विवाद होना तो स्वाभाविक है। और जब विवाद की बात आती है तो सीधा ध्यान IR कोड यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर जाता है। सबसे ज्यादा गर्मागर्म बहस इसी पर होती है। एक बहुत बड़ी अफवाह ये है कि सरकार ने हड़ताल करने का अधिकार ही छीन लिया है। क्या IR कोड में हड़ताल पर कोई बैन है? अगर हम IR कोड के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें तो ये बैन वाली बात पूरी तरह गलत साबित होती है। हड़ताल करने का अधिकार पूरी तरह बरकरार है। तो बदलाव क्या हुआ है? बदलाव सिर्फ प्रक्रिया में हुआ है। अब किसी भी हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना अनिवार्य है। अगर मैं एक यूनियन लीडर की तरह सोचूं तो क्या ये 14 दिन का नोटिस सिर्फ कर्मचारियों के गुस्से को ठंडा करने का तरीका नहीं है? सतह पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का असल मैकेनिज्म है कंसिलिएशन यानी मध्यस्थता। ये 14 दिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो इस दौरान होता क्या है? इस दौरान एक सरकारी मध्यस्थ नियुक्त होता है जो नियोक्ता और यूनियन लीडर को आमने सामने बैठाता है। कोशिश ये होती है कि काम ठप करने के बजाय बातचीत से कोई हल निकले।
अगर नहीं निकलता तो यूनियन हड़ताल के लिए आजाद है। अच्छा, ये बात है। और आईआर कोड का एक और हिस्सा है जिसने बहुत ध्यान खींचा है, वो है छटनी और हायर एंड फायर पॉलिसी। हाँ, वो 300 कर्मचारियों वाली सीमा। एग्जैक्टली। नए नियम के तहत जिन कारखानों में 300 तक कर्मचारी हैं, वे सरकार की अनुमति के बिना छटनी कर सकते हैं। पहले ये सीमा 100 की थी। तो क्या ये सीमा बढ़ाने से छोटी कंपनियों के कर्मचारियों में असुरक्षा नहीं आएगी? देखिए, इस सीमा को बढ़ाने का असल कारण प्रशासनिक सहूलियत है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कर्मचारियों को बस यूं ही निकाला जा सकता है। तो उनके पास क्या अधिकार बचते हैं? उन्हें निकालने के लिए सख्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। 1 महीने का नोटिस देना आज भी अनिवार्य है। छटनी का मुआवजा भी मिलेगा। और एक बिल्कुल नई चीज जोड़ी गई है, रीस्किलिंग फंड। ये रीस्किलिंग फंड असल में काम कैसे करेगा? पैसा कहाँ से आएगा? जब भी किसी की छटनी होगी तो नियोक्ता को उस कर्मचारी के 15 दिन के वेतन के बराबर की राशि इस फंड में जमा करनी होगी। इसका उद्देश्य ये है कि उस पैसे से कर्मचारी को नई ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि वो बाजार की नई जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार कर सके और जल्द नौकरी पा सके। और अगर इन सब के बावजूद विवाद होता है तो क्या आप फिर से लेबर कोर्ट्स के चक्कर काटने होंगे? यहाँ भी प्रोसेस को तेज किया गया है। पुराने लेबर कोर्ट्स को अब 2 टियर ट्रिब्यूनल सिस्टम से रिप्लेस किया गया है। अच्छा। हाँ, इनमें 2 सदस्य होंगे, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। इससे मुकदमों की सुनवाई तेजी से होगी। तो अगर हम इन तमाम दस्तावेजों को समेट कर देखें तो ये साफ है कि ये चारों लेबर कोड्स सिर्फ पुराने कानूनों का नया ड्राफ्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एकदम सही। और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, ये सब भारत के वर्कस्पेस को आधुनिक बनाने की एक ठोस शुरुआत है। हाँ, मतलब कानून आखिरकार उस गति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिस गति से हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है। ये इंसान की गरिमा को नई परिभाषा देने का प्रयास है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा विचार है जो इन दस्तावेजों की सीमाओं के पार जाता है। वो क्या? आज हमने देखा कि इन कानूनों ने गिग इकोनॉमी और ऐप आधारित काम को पहचान दे दी है, लेकिन जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से भाग रही है, आने वाले कल में क्या होगा? आप एआई की बात कर रही हैं? हाँ, क्या होगा जब काम देने वाला कोई इंसान या कंपनी नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक एल्गोरिदम होगा जो खुद तय करेगा कि किसे कौन सा काम मिलेगा, किसे बोनस मिलेगा और किसे हमेशा के लिए सिस्टम से लॉग आउट कर दिया जाएगा। ये तो एक ऐसा परिदृश्य है जो काम और नियंत्रण के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख देगा। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब काम पूरी तरह से मशीनों के कंट्रोल में आ जाएगा, तो क्या भविष्य के लेबर कोड्स को एक इंसान और एक एल्गोरिदम के बीच का रिश्ता भी तय करना पड़ेगा? आज हमने जिस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की वो तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी बता रही है कि भविष्य का कार्यस्थल ऐसे सवाल खड़े करेगा जिनके जवाब हमें आज से ही ढूंढने शुरू करने होंगे। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये। तो चलिए, सुनने वालों के लिए इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वेलकम टू द डिबेट। आपको पता है, जब कोई पुरानी इमारत बहुत ज्यादा जर्जर हो जाती है तो हमारे पास असल में 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो मरम्मत या फिर पूरी तरह से नई इमारत। बिल्कुल, या तो हम उसकी दरारों को भरने के लिए बस कुछ ईंटें और सीमेंट लगा दें, या फिर उस पुरानी संरचना को पूरी तरह से गिराकर एक नई नींव रखें। और कई दशकों तक भारत का जो श्रम कानून ढांचा है वो बिल्कुल उस पुरानी इमारत की तरह ही था, जहां हर नए विवाद के बाद एक नया कानून बस एक पैबंद की तरह जोड़ दिया जाता था। हाँ, मतलब एक के बाद एक पैबंद। और इसी जटिलता को सुलझाने के लिए भारत में 4 नए लेबर कोड्स अस्तित्व में आए: इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन वेजेस, OSH&WC कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। और आज हम 2025-2026 के FAQs और स्रोत सामग्री के आधार पर इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। सही कहा। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय प्रश्न है, जो कोर डिबेट है, वो ये है कि क्या ये नए लेबर कोड्स नियोक्ताओं के लिए यानी एम्प्लॉयर्स के लिए व्यापार में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी लाने और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के बीच कोई न्याय संगत संतुलन स्थापित करते हैं, या फिर मतलब सरलीकरण के नाम पर, सिंप्लीफिकेशन के नाम पर ये जमीनी स्तर पर श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति, उनकी बार्गेनिंग पावर को ढांचागत रूप से कमजोर कर रहे हैं। देखिए, मेरा पक्ष इसमें बहुत स्पष्ट है। मैं मानती हूं कि ये कोड्स ऐतिहासिक सुधार हैं। मतलब ये पहली बार असंगठित क्षेत्र जैसे गिग वर्कर्स और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को औपचारिक सुरक्षा के दायरे में लाते हैं और एक बहुत ही पारदर्शी अनुपालन तंत्र स्थापित करते हैं। और मेरा तर्क ये है कि छटनी के लिए जो बढ़ाई गई 300 कर्मचारियों की सीमा है और ये जो नई इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर प्रणाली है, ये श्रमिकों की जमीनी सुरक्षा और उनके सामूहिक विरोध के अधिकार को बहुत हद तक कमजोर करती है। अच्छा, तो चलिए इस चर्चा को एक तार्किक ढांचे में रखते हैं। हम इसे एक मजदूर के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के नजरिए से देखते हैं। मतलब हायरिंग से लेकर फायरिंग तक। हाँ बिल्कुल, काम पर रखे जाने से लेकर वेतन मिलने और अंततः विवाद या नौकरी जाने की स्थिति तक। तो सबसे पहले बात करते हैं काम पर रखे जाने की। इन संहिताओं में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE को कानूनी मान्यता दी गई है।
दशकों से ठेका मजदूरी या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जरिए मजदूरों का भारी शोषण होता था, है ना? हाँ, बीच में एक ठेकेदार होता था जो अपना मोटा कमीशन काटता था। एग्जैक्टली ठेकेदार कमीशन काटता था और मजदूर के हाथ कुछ नहीं आता था। एफटीई उस बिचौलिए को पूरी तरह हटा देता है। देखिए, बिचौलिए को हटाना अच्छी बात है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं यहां आपसे थोड़ा असहमत भी हूं। क्यों? क्योंकि एफटीई को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये मजदूरों के लिए कोई बहुत बड़ा वरदान हो। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू को देखिए। एफटीई असल में स्थायी नौकरियों की कीमत पर अस्थायी रोजगार को संस्थागत बना रहा है। मतलब आप ही सोचिए, जब कोई कंपनी किसी मजदूर को 11 महीने या 1 साल के लिए एफटीई पर रख सकती है और बिना किसी कानूनी अड़चन के अनुबंध समाप्त कर सकती है, तो वो किसी को स्थायी रूप से क्यों रखेगी? परमानेंट जॉब्स तो खत्म ही हो जाएंगी ना। मैं आपकी चिंता समझ रही हूं, पर हमें जमीनी हकीकत देखनी होगी। मैं यहाँ एक एनालॉजी देती हूँ। ठेकेदार के जरिए काम करना ऐसा था जैसे आप रोजाना किसी सस्ते होटल में कमरा ले रहे हो। अच्छा। हाँ, कल कमरा मिलेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, कोई गारंटी नहीं है। एफटीए ऐसा है जैसे आपने 1 साल का रेंट या लीज साइन कर लिया हो। कम से कम उस 1 साल के लिए आपके पास दस्तावेज हैं, आपके अधिकार सुरक्षित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नए नियमों के तहत एफटीई को स्थायी कर्मचारियों के समान ही लाभ दिए गए हैं। कागज पर नहीं, सिर्फ कागज पर नहीं, चाहे वो ईपीएफ हो या ईएसआई यानी भविष्य निधि और राज्य बीमा, जो किसी भी मजदूर का बुनियादी सुरक्षा जाल होते हैं, अब एफटीए को भी मिलेंगे। मैं ये मानता हूं कि कागज पर ईपीएफ और ईएसआई का वादा है, लेकिन और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये पॉइंट पूरा करने दीजिए। ग्रेचुइटी, जो आमतौर पर किसी कर्मचारी को उसकी लंबी वफादारी के लिए एक मुश्त इनाम के रूप में दी जाती है, पहले 5 साल की निरंतर सेवा के बाद मिलती थी। हाँ, 5 साल का नियम था। लेकिन अब एफटीई के लिए इसे घटाकर मात्र 1 वर्ष कर दिया गया है। आप सोचिए, ये ठेकेदारी प्रथा पर कितना बड़ा प्रहार है। देखिए, 1 साल में ग्रेचुइटी मिलना सैद्धांतिक रूप से एक बहुत बड़ा कदम है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें व्यावसायिक व्यवहार या कॉर्पोरेट बिहेवियर को भी समझना जरूरी है। अगर 1 साल पूरा होने पर ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी तो कंपनियां क्या करेंगी? क्या करेंगी? वे 11 महीने में ही उस फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगी, 30 दिन का ब्रेक देंगी और फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी। मतलब मजदूर को कभी वो ग्रेचुइटी मिलेगी ही नहीं। यहीं पर आप गलत हैं। नए कोड्स इस तरह के आर्टिफिशियल ब्रेक को रोकने के लिए निरंतर सेवा, कंटिन्यूअस सर्विस की बहुत स्पष्ट परिभाषा देते हैं। आप इस तरह लूप होल नहीं निकाल सकते। और रोजगार के प्रवेश द्वार पर ही एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हाँ, डिलीवरी बॉयज और ड्राइवर्स। बिल्कुल, जैसे राइड शेयरिंग ड्राइवर्स, उन्हें पहली बार सामाजिक सुरक्षा निधि के दायरे में लाया गया है। एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में देना ही होगा। मैं मानता हूं कि गिग वर्कर्स को पहचानना यकीनन एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन चलिए मजदूर की जीवन चक्र के दूसरे चरण पर आते हैं। रोजगार की प्रकृति से आगे बढ़कर वेतन और भत्तों पर बात करते हैं। ठीक है। यहां मुझे कुछ गंभीर ढांचागत कमियां नजर आती हैं। कोड ऑन वेजेस के तहत न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक तो कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अब वो पुरानी अनुसूचित रोजगार या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की सीमित सूची खत्म हो गई है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई सूची खत्म होने में नहीं है, लेकिन वेतन की जो नई परिभाषा है और उसमें जो 50% भत्ते का नियम है, 50% अलाउंस रूल, उस पर मुझे भारी संदेह है। ओफो, मुझे तो लगता है कि 50% भत्ते का नियम इस पूरी कवायद का सबसे मास्टर स्ट्रोक हिस्सा है। मास्टर स्ट्रोक? कैसे? मैं समझाती हूँ कैसे। अतीत में क्या होता था, मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल वेतन 10,000 रुपए है। कंपनियां जानबूझकर उसका बेसिक पे सिर्फ 2,000 रुपए रखती थी और बाकी 8,000 रुपए मकान किराया, यात्रा भत्ता या वॉशिंग अलाउंस जैसे भत्तों के नाम पर देती थी। हाँ, ताकि उन्हें ईपीएफ में अपना हिस्सा कम देना पड़े। बिल्कुल सही, क्योंकि ईपीएफ और ग्रेचुइटी की गणना बेसिक पे पर होती है, तो बेचारा मजदूर रिटायरमेंट के समय खाली हाथ रह जाता था। अब नया नियम ये स्पष्ट करता है कि यदि आपके कुल भत्ते आपके कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक हो जाते हैं, तो उस अतिरिक्त राशि को वापस आपके मूल वेतन बेसिक वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि आपके पीएफ और ग्रेचुइटी का आधार बढ़ जाएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि कर्मचारी के हाथ में आने वाला वेतन, टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में उसकी सामाजिक सुरक्षा कहीं अधिक मजबूत होगी। ये गणितीय सूत्र उस पुरानी कॉर्पोरेट चाल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आपका ये गणितीय सूत्र सैद्धांतिक रूप से बहुत आकर्षक है, लेकिन जरा एक आम मजदूर की नजर से देखिए। आज जब महंगाई मतलब इन्फ्लेशन इतनी अधिक है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, तो एक मजदूर को आज अपने हाथ में ज्यादा नकद चाहिए या 30 साल बाद मिलने वाले पीएफ की सुरक्षा? लेकिन सुरक्षा भी तो। 1 मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। टेक होम सैलरी कम होने से उसकी आज की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर कम हो जाती है
और वेतन से ही जुड़ा एक और मुद्दा है काम के घंटे और ओवरटाइम। अच्छा, OSNWC कोड कुछ परिस्थितियों में 12 घंटे तक के काम के लचीलेपन की अनुमति देता है। जब आप कानूनन 12 घंटे काम करने की अनुमति दे देते हैं तो ओवरटाइम की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है। क्या आपको वाकई लगता है कि जमीनी स्तर पर नियोक्ता 8 घंटे के बाद ओवरटाइम का दोगुना भुगतान करेंगे? यहाँ मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि यह एक बहुत आम गलतफहमी है और FAQs में इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुलझाया गया है। 12 घंटे की शिफ्ट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मानक कार्य समय बदल गया है। तो फिर क्या मतलब है इसका? मानक कार्य समय अभी भी 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह ही है। तो फिर 12 घंटे का प्रावधान क्यों लाया गया? कंफ्यूजन पैदा करने के लिए? नहीं, कंफ्यूजन के लिए नहीं, ये कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिए है, जैसे मौसमी उद्योग, सीजनल इंडस्ट्रीज या जहां 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जा रहा हो, मतलब 4 डे वर्क वीक। अगर कोई 4 दिन में 12-12 घंटे काम करता है तो वो 48 घंटे की साप्ताहिक सीमा पूरी कर लेता है और उसे 3 दिन का वैतनिक अवकाश यानी पेड लीव मिलता है। लेकिन अगर वो 6 दिन काम कर रहा है तो 8 घंटे के ऊपर किए गए किसी भी काम के लिए सामान्य वेतन दर से दोगुना, ट्वाइस द रेट ऑफ नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ये कोई ग्रे एरिया नहीं है, इसके पीछे का तंत्र बहुत ही स्पष्ट है। देखिए, तंत्र कागज पर स्पष्ट हो सकता है, लेकिन इस तंत्र को जमीन पर लागू कौन करेगा? कौन देखेगा कि ओवरटाइम मिल रहा है या नहीं? और यही हम मजदूर के जीवन चक्र के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं, विवाद समाधान, हड़ताल और छटनी यानी रिट्रेंचमेंट। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR कोड के उस प्रावधान से है जिसने छटनी के लिए सरकारी अनुमति की सीमा 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के अधिकांश कारखाने जिनमें 300 से कम मजदूर हैं, वो जब चाहे तब बिना राज्य सरकार की मंजूरी के अपने मजदूरों को निकाल सकते हैं। ये हायर एंड फायर को कानूनी जामा पहनाना नहीं तो और क्या है? आप ही बताइए। मैं जानती थी कि आप ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन इसके पीछे के आर्थिक तर्क, इकोनॉमिक रैशनल को समझना बहुत जरूरी है। हायर एंड फायर एक बहुत ही भावनात्मक शब्द है, लेकिन जरा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इतिहास को देखिए। 100 कर्मचारियों की सीमा ने भारत के उद्योगों में एक बौनापन या ड्वार्फिज्म पैदा कर दिया था। बौनापन? आपका क्या मतलब है इससे? मतलब ये कि मान लीजिए पुणे में ऑटो पार्ट्स बनाने वाला एक मध्यम स्तर का कारखाना है। वहां 99 मजदूर काम करते हैं। अब कारखाने के पास बड़े ऑर्डर आते हैं और उसे 50 और लोगों की तुरंत जरूरत है, तो वो हायर करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। मालिक 100 का आंकड़ा पार ही नहीं करना चाहता, क्योंकि 100 पार करते ही उसे कभी छटनी या व्यापार बंद करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, जो कि लाल फीताशाही के कारण कभी मिलती नहीं थी। तो वो मालिक क्या करता था? वो उन 50 नए मजदूरों को रजिस्टर पर रखता ही नहीं था, उन्हें नकद में पगार देता था, उनका कोई PF नहीं कटता था, वे पूरी तरह से अदृश्य मजदूर बन जाते थे। इस 300 की सीमा का उद्देश्य कंपनियों को बड़ा होने और मजदूरों को औपचारिक रिकॉर्ड में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और सबसे बड़ी बात, बिना अनुमति के छटनी का मतलब बिना मुआवजे के छटनी बिल्कुल नहीं है। लेकिन नौकरी जाने का डर तो हमेशा बना रहता है ना? डर नहीं, इसे लचीलापन कहिए। देखिए, अगर व्यापार नहीं चल रहा तो नियोक्ता को अभी भी हर निकाले गए मजदूर को 1 महीने का अनिवार्य नोटिस देना होगा और हर साल की सेवा के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर छटनी मुआवजा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन देना होगा। इसके अलावा नए कोड्स में एक बहुत शानदार प्रावधान है, रीस्किलिंग फंड। नियोक्ता को हर निकाले गए मजदूर के लिए 15 दिन का अतिरिक्त वेतन इस फंड में डालना होगा, ताकि वो मजदूर नया कौशल सीखकर दूसरी नौकरी पा सके। रीस्किलिंग फंड का विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे छटनी मुआवजे से नहीं बल्कि उस शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर से ऐतराज है जो अब पूरी तरह बदल गया है। कैसे बदल गया? जब प्रबंधन को पता होता है कि उसे सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये 300 की सीमा सामूहिक रूप से आवाज उठाने वाले या यूनियन बनाने वाले मजदूरों को चुन चुनकर बाहर करने का एक हथियार बन जाती है। और ये सिर्फ छटनी तक सीमित नहीं है। जरा हड़ताल के नियमों पर गौर करें। हड़ताल के नियमों में क्या परेशानी है? IR कोड के तहत अब किसी भी उद्योग में, चाहे वो जनोपयोगी सेवा हो या नहीं, हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें गलत क्या है? बातचीत के लिए समय मिलना, मध्यस्थता होना तो एक सभ्य समाज की निशानी है। गलत यह है कि ये मजदूरों के अचानक और सहज विरोध, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट करने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर देता है। आप कल्पना कीजिए कि एक कारखाने में कोई गंभीर सुरक्षा विफलता होती है, कोई बॉयलर लीक हो रहा है या सुपरवाइजर द्वारा कोई तात्कालिक उत्पीड़न होता है। मजदूर तुरंत काम रोककर अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते, उन्हें कानूनी रूप से 14 दिन इंतजार करना होगा।
लेकिन 14 दिन का नोटिस हड़ताल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये समझने वाली बात है। ये 14 दिन का समय प्रबंधन को हड़ताल को दबाने, मजदूरों को डराने या अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का पूरा समय दे देता है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसका उद्देश्य हड़ताल को दबाना है। इसका तकनीकी और कानूनी उद्देश्य अनिवार्य सुलह, कंपल्सरी कॉन्सिलिएशन शुरू करना है। जैसे ही नोटिस दिया जाता है, सरकारी मध्यस्थता तस्वीर में आ जाता है। देखिए, हड़ताल का मतलब है प्रोडक्शन का रुकना। ये ना तो कंपनी के लिए अच्छा है, न देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और ना ही उस मजदूर के लिए जिसे उस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। ये 14 डेज का बफर ये सुनिश्चित करता है कि हड़ताल अंतिम विकल्प हो, पहला नहीं। मध्यस्थता तब काम करती है जब मध्यस्थ निष्पक्ष हो और उसके पास अधिकार हो। और यहीं मेरी तीसरी और सबसे गहरी चिंता सामने आती है, प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट। अच्छा, हमने कानूनों को सरल तो कर दिया, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू कौन करेगा? नए कोड्स में पारंपरिक लेबर इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का पद बनाया गया है, जो कि इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बहुत जरूरी कदम था। मुझे डर है कि ये फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता शब्द जमीनी स्तर पर कानून के डर को ही खत्म कर देगा। मतलब वे अब अनुपालन सुनिश्चित करने वाले सख्त अधिकारियों से ज्यादा नियोक्ताओं के सलाहकार बनकर रह जाएंगे। जब कोई अधिकारी कारखाने में जाता है और उसका काम सुविधा देना है, तो वो मजदूर की शिकायत पर जोर देने के बजाय मालिक को कमियों को छिपाने के तरीके बता सकता है। ये एक बहुत ही निराशावादी नजरिया है। मैं इसे भी एक एनालॉजी के माध्यम से समझाती हूँ। पुराना इंस्पेक्टर राज एक मैनुअल टोल बूथ की तरह था। मैनुअल टोल बूथ? हाँ, जहाँ मैनुअल टोल होता है वहाँ बैरियर गिराकर रिश्वत ली जाती है, भाई भतीजावाद होता है और उत्पीड़न की पूरी संभावना होती है। इंस्पेक्टर बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी भी कारखाने में घुसकर उत्पादन रोक सकता था। इसके विपरीत नई वेब आधारित रैंडमाइज्ड निरीक्षण प्रणाली, रैंडमाइज्ड वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस, एक ऑटोमेटेड स्पीड कैमरे की तरह है। ये पूरी तरह निष्पक्ष है। किस कारखाने का निरीक्षण होगा ये कोई स्थानीय अधिकारी तय नहीं करेगा, बल्कि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर एल्गोरिदम तय करेगा, और निरीक्षण की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर वेब पोर्टल पर डालनी होगी। फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि अगर कोई छोटी मोटी कागजी गलती है तो वो उसे सुधारने का मौका देगा, लेकिन गंभीर उल्लंघनों के लिए दंड को पुराने कानूनों के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया है। आपकी ऑटोमेटेड स्पीड कैमरे वाली एनालॉजी सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक स्पीड कैमरा तभी काम करता है जब उसकी दिशा सही हो। फैसिलिटेटर शब्द का समावेश मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस कैमरे का लेंस मजदूरों की सुरक्षा के बजाय नियोक्ताओं की सुविधा के हिसाब से सेट किया गया है। लेकिन खैर, इस पूरी बहस में मैं यहाँ थोड़ी बौद्धिक उदारता दिखाना चाहूंगा। मुझे सिर्फ आलोचना नहीं करनी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। हाँ, इन संहिताओं में कुछ ऐसे पहलू हैं जो वाकई भविष्योन्मुखी हैं और जिनकी मुझे सराहना करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम किसी बिंदु पर तो सहमत होने जा रहे हैं। बिल्कुल। समावेशिता, इंक्लूसिविटी और नए वर्गों की मान्यता के मामले में ये एक बेहतरीन कदम है। उदाहरण के लिए, ओएस कोड के तहत पहली बार ट्रांसजेंडर श्रमिकों के लिए अलग शौचालय और स्नान सुविधाओं का वैधानिक प्रावधान किया गया है। यह कार्यस्थल पर उनकी गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही मानवीय कदम है। बिल्कुल सही। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट्स, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज और ऑडियो विजुअल वर्कर्स जैसे सिनेमा के सेट पर काम करने वाले स्टंटमैन, लाइट बॉय और डबिंग आर्टिस्ट को श्रमिक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा में शामिल किया गया है। अब तक वे ठेकेदारों के शोषण का शिकार होते थे और उनके पास कोई श्रम अधिकार नहीं था। और यही बात तो मैं शुरुआत से कह रही हूं। इन कोड्स की असली ताकत यह है कि यह पहचानते हैं कि हम अब 1970 के दशक की अर्थव्यवस्था में नहीं जी रहे हैं। आज की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। गिग इकोनॉमी, डिजिटल मीडिया, फिल्म निर्माण, ये सब रोजगार के नए इंजन हैं। हाँ, सही बात है। पुराने कानून इन वर्गों को पहचानते ही नहीं थे। इन संहिताओं ने इन्हें एक सुदृढ़ कानूनी ढांचे के भीतर लाकर उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा दी है जिसके वे हमेशा से हकदार थे। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटे और अपने अपने रुख का मूल्यांकन करें, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये चारों लेबर कोड्स असंगठित और संगठित क्षेत्रों के बीच की उस गहरी खाई को पाटने का एक सफल प्रयास है। अनुसूचित रोजगार की सीमाओं को तोड़ना, 50% भत्ते का नियम लाकर रिटायरमेंट बेनिफिट्स को सुरक्षित करना, एफटीएस को ठेकेदारी के चंगुल से निकालकर 1 साल में ग्रेच्युटी का हकदार बनाना और वेब आधारित पारदर्शी अनुपालन तंत्र लाना, ये सभी चीजें हमारे श्रम बाजार को आधुनिक बनाती हैं। हाँ, नियोक्ताओं को लचीलापन दिया गया है, लेकिन वो लचीलापन मजदूरों के कल्याण कोष और स्पष्ट छटनी मुआवजे की शर्तों के साथ आता है। देखिए, मैं आपके द्वारा गिनाए गए इन सकारात्मक बिंदुओं को नकार नहीं रहा हूं।
ट्रांसजेंडर्स और ऑडियो विजुअल वर्कर्स के लिए किए गए प्रावधान निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। लेकिन मेरा निष्कर्ष यह है कि जब बात बुनियादी सौदेबाजी की शक्ति, बार्गेनिंग पावर की आती है, तो संतुलन बिगड़ गया है। 300 श्रमिकों की छटनी सीमा, हड़ताल के लिए 14 दिन का अनिवार्य नोटिस और फैसिलिटेटर आधारित निरीक्षण प्रणाली ऐसी संरचनात्मक कमियां हैं जो कागजी अधिकारों को जमीन पर लागू होने से रोक सकती हैं। आप सोचिए, एक मजदूर जो अपनी नौकरी खोने के डर में है, वो अपने ईपीएफ या 50% भत्ते के नियम के उल्लंघन की शिकायत एक फैसिलिटेटर से कैसे करेगा? मेरी नजर में आधुनिकीकरण के नाम पर यह संतुलन नियोक्ताओं के पक्ष में काफी ज्यादा झुका हुआ प्रतीत होता है। ये एक ऐसा तनाव है जो शायद श्रम अर्थशास्त्र, लेबर इकोनॉमिक्स के मूल में हमेशा रहेगा। पूंजी की गतिशीलता और श्रम की सुरक्षा के बीच का संतुलन बिठाना कभी आसान नहीं होता। लेकिन जैसा कि आपने भी माना, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम एक स्पष्ट प्रगति देख रहे हैं। प्रगति है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं श्रोताओं के सामने एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण विचार छोड़ना चाहूंगा। भारतीय संविधान के तहत श्रम यानी लेबर एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। हाँ, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने ये 4 कोड्स तो संसद से पारित कर दिए हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा ये होगी कि राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन्हें कैसे लागू करती हैं। वे इन संहिताओं के तहत अपने राज्य के नियम, स्टेट रूल्स कैसे बनाती हैं, फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति कैसे करती हैं। यही अंततः तय करेगा कि मजदूरों को वाकई न्याय मिलेगा या नहीं। यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। कानून चाहे जितना भी बेहतरीन और व्यापक क्यों ना हो, उसका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ही उसकी असली कसौटी होती है। द डिबेट के श्रोताओं से हम हमेशा यही आग्रह करते हैं कि वे केवल दावों पर विश्वास न करें। स्रोत सामग्री जैसे कि 2025-26 के FAQs सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। आप स्वयं उनमें गहराई से जाएं, उन प्रावधानों को पढ़ें और खुद ये तय करें कि यह नया कानूनी ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत में हमने उस पुरानी जर्जर की इमारत का जिक्र किया था। इन नई लेबर कोड्स ने उस पुरानी इमारत को गिराकर एक नया ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया है और नींव भी रख दी है। लेकिन क्या इस नई इमारत में अर्थव्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर खड़े मजदूर को एक सुरक्षित छत मिल पाएगी, या सिर्फ कुछ ही लोग इसके आरामदायक कमरों तक पहुंच पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम उत्तर भविष्य ही देगा। और इसका जवाब आने वाले कुछ सालों में देश के कारखानों की मशीनों के बीच, दफ्तरों के केबिन में और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की व्यस्त सड़कों पर ही मिलेगा। आप सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और विचार करते रहिए। द डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।